अस्सलामु अलैका या मौला या हसन इब्न अली अल-हादी अल-अस्करी। अस्सलामु अलैका या अय्युहल मज़लूम वब्नल मज़लूम। अस्सलामु अलैका या अय्युहश शहीद वब्नश शहीद। हाय मौला अस्करी, हाय मौला अस्करी। सामरा में हवा करबला की चली, घर में ज़हरा के फिर एक क़यामत हुई। ज़हर ने काट डाला दिले अस्करी, ज़हर ने काट डाला दिले अस्करी। फातिमा कर रही है लहद में बुका, हाय फिर से हसन को उगलने लगा। से मेरे हसन का जनाजा उठा, फिर से मेरे हसन का जनाजा उठा। मुस्लिम सज्जाद कैदी बने अस्करी, सकीना को रोते रहे अस्करी। पर रिहाई नहीं पा सके अस्करी, पर रिहाई नहीं पा सके अस्करी। कैद खाने में मौला की थी ये सदा, इस कदर बेबसी मेरी वाह गुर्बता। हाय कर्बो बला मैं नहीं जा सका, हाय कर्बो बला मैं नहीं जा सका। हसन का जनाजा उठा मोमिनों, आज खालिक से रो कर दुआ ये करो। इस जनाजे पे तीरों की बारिश न हो, इस जनाजे पे तीरों की बारिश न हो। हानिए गमज़दा और क्या हो बयां, आज फिर खूब बहाते हैं अर्ज़ो समा। बेपदर हो गए हैं इमाम ज़मान, बेपदर हो गए हैं इमाम ज़मान। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन।
صدق الله العلي العظيم. صلوات. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساب فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساب فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساب فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آل محمد وعجل فرجهم فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما يجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه الصلاة والسلام इलाही परवरदिगार तुझे वास्ता पंचतन पाक 12 इमाम 14 मासूम 72 शुहदाई करबला का हमारी इस पाकीज़ा महफिल पाकीज़ा मजलिस को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत नसीब फरमा इस मजलिस के सदक़े हमारे गुनाह ने कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा बिलख़ुसूस हाजी नासिर साहब की मग़फ़िरत फरमा और बिलख़ुसूस ज़ाकिर अहल बैत नवीद आशिक बीर साहब की मग़फ़िरत फरमा ज़ाकिर अहल बैत को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा जवार आइमा में जगह नसीब फरमा शफ़ाअत आले मोहम्मद नसीब फरमा इलाही परवरदिगार तुझे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हाज़रीन मोमिनीन की दिली हाजात पूरी फरमा हाज़रीन मोमिनीन के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा इलाही परवरदिगार तुझे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जिन जवानों ने ये मजलिस के अहतमाम के इन तमाम जवानों की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा इनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा इनके साथ जिन जिन मोमिनीन ने ताउन के तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा इलाही परवरदिगार हमारे बहर में आका का दिल ज़हूर फरमा हमें इमाम के मिशन की मारिफत नसीब फरमा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर भी बुलंद पर सलावत पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। आप एक बार फातिहा पढ़ लें, क्योंकि हमारे ज़ाकिर जो नवीदा शिक किए थे वो शहीद किया गया, उनकी रूह को इसाले सवाब करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना है तो चंद शाहादात के है। मिला जो मिला जो ज़माने को, मिला जो ज़माने को, खजीना है मोहम्मद का। बने हैं अंबिया जिससे पसीना है मोहम्मद का। बने हैं अंबिया जिससे पसीना है मोहम्मद का। जहाँ हर शय समा जाए उसे कुरान कहते हैं। जहाँ कुरान समा जाए वो सीना है मोहम्मद का। बुलंद सलावत। और नात के चंद और भी अशआर सुनाना चाहूँगा। जो इश्क़ मोहम्मद का, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। फिर भी एक बार बुलंद सलावत। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है। हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है। सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न सवारो। ये शहर मोहम्मद मिस्र का बाजार नहीं है। बुलंद सलावत। हमको तो क़यामत में
बचा लेंगे मोहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। बुलंदर सलावत। चलें क्योंकि मैंने पढ़ना है, मोबाइल मेरे पास अभी आया नहीं। चलिए मैं आज आपको चंद अशार मौला हुसैन की ज़ुबानी मौला अब्बास की जो सना मौला हुसैन ने बयान किया है, वो चंद अशार सुनाना चाहूँगा आपको। सुनो शबीर से गाजी की सना, सुनो शबीर से गाजी की सना, सुनो शबीर से गाजी की सना, सुनो शबीर से गाजी की सना। मौला हुसैन क्या फरमाते हैं अपने भाई अब्बास के बारे में? सूराए कदर के पर्दे में पला है अब्बास, सूराए हम्द की गोदी में रहा है अब्बास, आले इमरान के आंगन में पला है अब्बास, दिल यासीन धड़कने की सदा है अब्बास, बेके नुक्ते से जो वन्नास तलक जाएगा, सारे कुरान में अब्बास नजर आएगा। सुनो शबीर से गाजी की सना, सुनो शबीर से गाजी की सना, जिसको आंधी कहे तूफान वो मेरा गाजी है। मौला हुसैन फरमा रहे हैं, तबीयत जरा नासाज है, आपने जुमलों पे तवज्जो करनी है। जिसको आंधी कहे तूफान वो मेरा गाजी है, जिसके खादिम है सुलेमान वो मेरा गाजी है। जिसको आंधी कहे तूफान वो मेरा गाजी है, जिसके खादिम है सुलेमान वो मेरा गाजी है। मौत है जिससे परेशान वो मेरा, जिसमें शबीर की है जान वो मेरा गाजी है। इसकी अजमत की तो ज़ैनब ने कसम खाई है, फातिमा ज़हरा का बेटा है मेरा भाई। सुनो शबीर से गाजी की सना, सुनो शबीर से गाजी की सना। और मौला हुसैन फरमाते हैं, अपने पहलू में हमेशा से बिठाया मैंने। मौला अब्बास को मौला हुसैन फरमा रहे हैं, अपने पहलू में हमेशा से बिठाया मैंने, मुझको ज़हरा ने इसे झूला झुलाया मैंने। फर्ज नाना की तरह अपना निभाया मैंने, इसको कांधों पे कई बार बिठाया मैंने। सब ये कहते हैं समा खूब बना रखा है, देख लो चांद ने सूरज को उठा रखा। सुनो शबीर से गाजी की सना, सुनो शबीर से गाजी की सना। और बड़ा खूबसूरत मिसरा तवज्जो करनी है। मौला हुसैन फरमा रहे हैं, इसकी हर एक सिफत है मेरे बाबा जैसी, वो सखी ये भी सखी, वो भी वली ये भी वली। फर्क अल्लाह ने हम दोनों में रखा है यही, मैं मोहम्मद का मोहम्मद, ये अली का है अली। करबला में शबे हिजरत का जो मंजर होता, करबला में शबे हिजरत का जो मंजर होता,
मेरे मेरे बिस्तर पे भी अब्बास दिलावर। सुनो शब्बीर से गाजी की सना, सुनो शब्बीर से गाजी की सना। एक बार बुलंद कर सलावत। बस चंद अशार मसाइब के सुनाना चाहूँगा। ऐ मुंतकिम कब आओगे, ऐ मुंतज़िर कब आओगे। सब मौला के ज़हूर के लिए हर वक्त दुआ किया करिए। जितने हमारी कौम पर जुल्म हो रहे हैं, आप सब ये दुआ किया करिए। ऐ मुंतकिम कब आओगे, ऐ मुंतज़िर कब आओगे। ज़हरा ज़हरा की अंधेरी तुर्बत पे कब शम्मा जलाने आओगे। ज़हरा की अंधेरी तुर्बत पे कब शम्मा जलाने आओगे। टूटी हुई कब्रों को मौला किस रोज बनाने आओगे। ऐ मुंतकिम कब आओगे, ऐ मुंतज़िर कब आओगे। और करबला से जब शाम की तरफ काफिला चला तो कुछ बच्चे ऊंटों से गिरते थे और गिरकर शहीद हो जाते थे। तो शायर ने क्या खूबसूरत मिसाल लिखा है। वो शाम और कूफा के रास्ते, वो नाकों से गिरते बच्चे, है कौन कहाँ पर दफन हुआ, कब नाम बताने आओगे। ऐ मुंतकिम कब आओगे, ऐ मुंतज़िर कब आओगे। ज़हरा की अंधेरी तुर्बत पे कब शम्मा जलाने आओगे। अल्लाहुम्मा करबला तेरे परस्ता नहीं मर सकते। करबला तेरे परस्ता नहीं मर सकते। मौत से शहर के आज़ादार नहीं मर सकते। मौत से शहर के आज़ादार नहीं मर सकते। आज भी रोज़े हुर से ये सदा आती है। आज भी रोज़े हुर से ये सदा आती है। जिस्म मर सकते हैं किरदार नहीं मर
जिस्म मर सकते हैं किरदार नहीं मर सकते। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके इल्म में है कि ये मजलिस हमारे और आपके 11वें आका जनाब हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से है, तो उनकी मदह में चंद अशार और उसके बाद मसाइब की चंद अशार आपकी समातों के लिए हदिया। एक बार बावाज़े बुलंद सब मिल के दुरूद पढ़ो। नाइबे खैरुल वरा कुरान गोया अस्करी, नाइबे खैरुल वरा कुरान गोया अस्करी, तेरवा है मुसहफ़े नातिक़ का सूरा अस्करी, जिसके पीछे अंबिया भी आएंगे पढ़ने नमाज, जिसके पीछे अंबिया भी आएंगे पढ़ने नमाज। ए खुशा फर्जंद है वो आप ही का अस्करी, ए खुशा फर्जंद है वो आप ही का अस्करी, ताबत है इनके बेटे की इमामत दहर में, ताबत है इनके बेटे की इमामत दहर में, कायमे आले मोहम्मद के हैं बाबा अस्करी, खालिको मखलूक सबके काम आता है मदाम, दो जहां में आप ही का खानवादा अस्करी, अंबिया मुरसलीन और 10 इमामों के अमीन, अंबिया मुरसलीन और 10 इमामों के अमीन, नूर व इस्मत और हिदायत का इआदा अस्करी, नाइबे खैरुल वरा कुरान गोया अस्करी। नारे सल्लल्लाहु अलैहि। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है। मैं समझता हूँ कि वो इन हालात के लिए बहुत ही मौजू और हम सब की आवाज़ है। ये वो दिन है कि जिसमें मेरे और आपके ज़माने के इमाम को ग़ैबत कुबरा पर मजबूर किया गया और आज हम उनकी ज़ियारत से महरूम हैं। दुआ करते हैं हमेशा उनके बारगाह में मुनाजात करते हैं कि इमाम तशरीफ़ लाएँ, जल्द तशरीफ़ लाएँ। ज़माना मज़ालिम ढा रहा है, ज़माना हमें
तंग कर रहा है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, सादात को, मातम कुना जितने लोग हैं, अज़ादारान सबको इस ज़माने ने तंग कर रखा है। तो मैं चंद अशार इमाम के लिए पेश कर रहा हूँ। आप सब इमाम के जल्द ज़हूर की ताजिल इमाम ज़हूर के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जल्द आइए मौला, इंतकाम लेना है। जल्द आइए मौला, इंतकाम लेना है। तुमको अपने बाबा का इंतकाम लेना है। तुमको अपनी दादी का इंतकाम लेना है। मक्का और ताइफ में जो नबी पढ़ाए गए, अज़ मसीह ता आदम सारे अंबिया ने सहे। तुमको उन मज़ालिम का इंतकाम लेना है। दो जहां की मलका को इस तरह से झुटलाया और गिराया दरवाज़ा, सैयदा पे जलता हुआ कह रहा है दरवाज़ा, इंतकाम लेना है। कलमा गो के हाथों से जख्मी और कत्ल हुआ, उसके रस्सी बांधी गई जो था सबका उक़दा कुशा। यादगार उक़दा कुशा, इंतकाम लेना है। वो हसन मोहम्मद ने जिसको अपना बेटा कहा, जिसको अपने ही घर में दफन तक न होने दिया, गम गुसारे उक़दा कुशा, इंतकाम लेना है। बीबी फातिमा का घर जिस तरह उजाड़ा गया, करबला के जंगल में जिस तरह से लूटा गया, शह के उस भरे घर का इंतकाम लेना है। शह की आँख के तारे दोपहर में डूब गए, असर तक उठाए जो शहने लाशे प्यारों के, हर शहीद का आका इंतकाम लेना है। जल्द आइए मौला, इंतकाम लेना है। जिसको फौजे आदा ने बेजा
जवाज कत्ल किया। 3 दिन के प्यासे को मारा तीर से शोभा। कहता है वो शशमाहा इंतकाम लेना है। और ये 2 बंद मुसलसल जो है मैं जनाबे आशिक हुसैन भी ये साहब शहीद की नज़र करता हूँ। ये उनके लिए, उनके बुलंदी दर्जात के लिए, और ये उनके दिल की और हमारे समारे दिल की आवाज़। सब हिसाब बाकी है अज सकीफता गैबत। बढ़ रही है बेचैनी जल्द आइए हजरत। सब्र अब नहीं होता इंतकाम लेना है। जल्द आइए मौला इंतकाम लेना है। और कुछ तो सद्दे बाब इसका कीजे मौला कब्रे ज़हूर। कुछ तो सद्दे बाब इसका कीजे मौला कब्रे ज़हूर। ये जो आए दिन लाशें हम उठा रहे हैं हुजूर। आप ही को इन सब का इंतकाम लेना है। अपना हश्र जो भी हो मौला जल्द आ जाएं। लग़्ज़िशों की हम अपनी ख्वाह कुछ सजा पाएं। इसकी कुछ नहीं परवाह इंतकाम लेना है। और मक्ते का बंद अर्ज़ है मजलिसो जुलूस से अज़ा सोज़ो मरसिया नोहा। एक ही तो मकसद है सिबते जाफर इन सबका। याद रखें अहले अज़ा इंतकाम लेना है। जल्द आइए मौला इंतकाम लेना है। तुमको अपने बाबा का इंतकाम लेना है। बराए ताजीन ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ कि बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बुलंद से बुलंदतर सलावत। अब बिला तखीर दावत देना चाहूँगा इंतहाई वाजिबुल एहतराम ब्रदर अजीज़ जनाब सैयद अली रज़ा नकवी साहब को आएँ और अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें तो उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। ए खुदाए पंजतन ए खुदाए दो जहां। ये ज़मीं की वुसअतें ये वकार आसमान।
कि तेरे फैज से गई, कि तेरे फैज से गई ये नजर जहां जहां, तेरी कायनात में बुलंद थी सदा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि मेरे अल्लाह तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज्जत मिली इस खाक को, इज्जत मिली इस खाक को आदम बना दिया, फिर इल्म और कमाल से उसको सजा दिया, फिर इल्म और कमाल से उसको सजा दिया। सजदे का उसको पहले, सजदे का उसको पहले सलीका सिखा दिया, फिर खुद ही उसको लाई के सजदा बना दिया। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। और तारीख में अजीब है, तारीख में अजीब है हिजरत का वाक़या। तेगो सिना की जद में था महबूब किबरिया, तेगो सिना की जद में था महबूब किबरिया। वो वक्त मुस्तफा की हिफाजत का वक्त था, तो ये कह के कौन बिस्तरे अहमद पे सो गया। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक कलाम सब मोमिनीन के लिए और सब अज़ादारों के लिए, क्योंकि यकम हरम से लेके बल्कि 28 रजब से लेके 9 रबीउल अव्वल तक हर किसी अज़ादार की मौला ने ड्यूटी लगाई है। कोई सबील लगा रहा है, कोई नौखानी कर रहा है, कोई मरकबत पढ़ रहा है, कोई मजालिस पढ़ रहे हैं उलमा कराम जाके, यानी कि हर बंदे की, यहाँ तक के सिक्योरिटी गार्ड से लेके माइक वालों से लेके हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है। और इसको शायर अपने अंदाज में लिखता है कि ये हम मौला की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की। ये सब को मयसर होती नहीं, ये सब को मयसर होती नहीं, ये हुर जैसों को मिलती है। नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की। ये मन सब जिसको मिल जाए मौला की दुआएं पाता है। ये मन सब जिसको मिल जाए ज़हरा की दुआएं पाता है। वो खाक ज़रा होकर अभी खुद खाक शिफा बन जाता है। ये नेमत तो हम जैसों की तकदीर बनाए रखती है। नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की।
ये फर्श अज़ा ताबूत अलम, ये नोहे मजलिस और मातम, पानी की सबीले और लंगर, मासूम अली असगर की कसम, हम अहले अज़ा के मज़हब में कहलाती थी, कहलाती है नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की। ये लोग जो नोहा पढ़ते हैं, ये लोग जो मातम करते हैं, ये माँ बहनें जो रोती हैं, जाकिर जो खिताबत करते हैं, दरवाज़े ज़हरा पर इनकी तारोज़ क़यामत पक्की है, नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की। और मजलिस में सियासत मत करना, मौला से बगावत मत करना, मजलिस में सियासत मत करना, मौला से बगावत मत करना। इस फर्श अज़ा पर आके कलब, इस जिक्र की कीमत मत करना। बेलोस जो मातम करते हैं, बस उनको शिफात देती है नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की। और शबीर के जितने नौकर हैं, सेराफ़े जामे को सर हैं, खुद नाम अज़ा खानों के जो हैं, किस्मत के अबू ज़र कंबर हैं। इस इज़्ज़त को खुद बिन्ते नबी कुरान की ज़ुबान में कहती है नौकरी शबीर की, नौकरी शबीर की। सल्लल्लाहु एक मसाइब का भी फातिमा ज़हरा अस्सलाम वालेकुम कि तू बड़ी दुखी है फातिमा, कि तू बड़ी दुखी है फातिमा, कि तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा, कि अब भी रो रही है फातिमा, अब भी रो रही है फातिमा। और पसलियों 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 से रिस रहा है खून, पसलियों से रिस रहा है खून, सांस ले रही है फातिमा, सांस ले रही है फातिमा। तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। और जोड़ी दाम तेरी है फातिमा, जोड़ी दाम तेरी है फातिमा। खून से भरी है फातिमा, खून से भरी है फातिमा। तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। और ठोकरों ठोकरों से मारते हो क्यों,
ठोकरों से मारते हो क्यों? अरे दुख्तरे नबी है फातिमा, दुख्तरे नबी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। और गिर गए हैं मुँह के भल्लाली, गिर गए हैं मुँह के भल्लाली। आज चल बसी है फातिमा, आज चल बसी है फातिमा, कि तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। और कातिलों के नाम भी न लो, कातिलों के नाम भी न लो, कैसी बेबसी है फातिमा, कैसी बेबसी है फातिमा, कि तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। और नींद से हुसैन उठ गए, नींद से हुसैन उठ गए, याद आ रही है फातिमा, याद आ रही है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा, ये अलविदाई दिन चल रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके पुरसा दे लें अगले साल, क्या पता हम में से कौन हो कौन ना हो। तो और चंद ऐलानात समात फरमा लें, ये भी ज़िम्मेदारी होती है। 10 रबीउल अव्वल बाद अज़ नमाज मगरिबैन बमकाम मस्जिद इमाम बरगाह जमाल मुस्तफ़ा मियाँ अज़ीज़ गार्डन खैरापुल में जश्न सादिक़ैन का अहतमाम होगा, जिसमें कमर अकबर अंजुम साहब और हरफ आखिर पर पीर सैयद मुक़द्दस शाह कादमी साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात से पुरज़ोर शिरकत की अपील है। और 12 रबीउल अव्वल का भी ऐलान समात फरमा लें कि 12 रबीउल अव्वल बाद अज़ नमाज मगरिबैन बमकाम कोट अब्दुल्ला में मस्जिद बरमकान हाजी मलक मोहम्मद नवाज़ कोट अब्दुल्ला में जश्न का एहतमाम होगा 12 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज मगरिबैन, जिसमें दीगर उलमा कराम और ज़ाकिरीन के अलावा ज़ाकिर अहले बैत अल्ताफ़ हुसैन गौहर साहब और मोहम्मद अफजल हैदरी साहब और बाबा नज़ीर शाह साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से जश्न में शिरकत की पुरज़ोर अपील की जाती है। और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अब बिला ताख़ीर मैं दावत खिताब देना चाहूँगा इंतहाई वाजिबुल एहतराम और हमारे बुज़ुर्ग पीर बाबा सैयद इजाज़ शाह काज़मी साहब के वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनसे कबल बुलंद से बुलंद तर सलावा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। वो ला मकान है कोई मकान नहीं रखता, शान तौहीद। वो ला मकान है कोई मकान नहीं रखता, कलाम करता है तो बेशक ज़ुबान नहीं रखता। खुदा की शान को समझे कोई खुदा वाला,
वो हर जगह पे है लेकिन निशान नहीं रखता। नाराए तकबीर। पैदा जो मोहम्मद का तने पाक न होता, पैदा जो मोहम्मद का तने पाक न होता, पादाइश दारैन में कुछ खाक न होता। होते न मोहम्मद तो खिताबात है ये किसको, लौला के लमा खल्कुल इफलाक न होता। नाराए रिसालत। या अली तुझे मज़ारे आयात जान गए, या अली तुझे मज़ारे आयात जान गए, हद से ही गुजरे तो नुसैरी भी खुदा मान गए। लाख डालें तेरी तस्वीर पे तेरे पर्दे, पहचानने वाले फिर भी तुझे पहचान गए। नाराए हैदरी। हुस्नो जमाल देता है अब्बास का अलम, हुस्नो जमाल देता है अब्बास का अलम, मुश्किलों को टाल देता है अब्बास का अलम। अली मुश्किल कुशा है रसूलों के वास्ते, अपनी तो टाल देता है अब्बास का आलम। नाराए हैदरी। हर शख्स को है इंसान बनाया हुसैन ने, हर शख्स को है इंसान बनाया हुसैन ने, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया हुसैन ने। बहनों को बेटियों को बलवों में जाते देखा, नबियों से बढ़ के सब्र दिखाया हुसैन ने। हुसैन याद, हुसैन याद। लूटी हुई ज़ैनब तेरी तकदीर यही थी, लूटी हुई ज़ैनब तेरी तकदीर यही थी, ला शादियों बर्बादियों तशहीर यही थी। तू सहबे ततहीर है तकसीर यही थी, अफसोस के तू काबिले जंजीर नहीं थी। यजीद याद। सिप्ते नबी का नक्श मिटाया न जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਾਂ। बड़े बड़े असी जिसले ये काम चले सन, असी ये भी इनकलाबी बड़े बड़े जलसियां दे उत्ते ये पढ़दा, सिप्ते नबी का नक्श मिटाया न जाएगा, सिप्ते नबी का नक्श मिटाया न जाएगा। ये सिप्ते नबी का नक्श मिटाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सुन ले मेरी तरफ से यजीदा ने सुने लो, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये मैं बचपन का लिखा थी तो बचपन ही पढ़िया थी, तो अज ही मैं जरा ना मैनू आया वे अज की मिसाल मुनासिबत माम असर असकरी की शहादत, तो मैं जरा ना मुश्तरका जा बंद पढ़ना चाहना। ओ कुछ सैयद ज़ैर मुका छोड़े ते कुछ खंजर दलाल खाएगे, कि को जिंदान दी गर्मी खा गई, कुछ बिच बाजार फरेगे। कुदरुल में चांदिया सफरां ते कुछ बिच बाजार मुकाए गए, जेड़े बच गए सपुरां विचों वो बगदाद दियां दीवारां विच वो है जिंदा दफन कराए गए। रहमतुल्लाह अलैहि। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बाबा जी फ़ज़ाइल मसाइब अहल मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। एक ऐलान समात फरमाएँ कि 12 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज मग़रिबैन बमकाम इमाम बारगाह जमाल मुस्तफ़ा अज़ीज़ गार्डन लाहौर में जश्न सादिक़ैन का मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें दीगर ज़ाकिरीन उलमा किराम के अलावा ज़ाकिर शौकत अली पहाड़पुर, डॉक्टर सैयद मोहसिन काज़मी, मलिक हसन अली रज़ा और सैयद अली रज़ा नकवी साहब खिताब करेंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील है। अब बिला ताख़ीर दावत देना चाहूँगा इंतहाई वाजिबुल एहतराम मस्जिद इमाम बारगाह जमाल मुस्तफ़ा के पेश नमाज मौलाना सैयद नादिर अब्बास नकवी साहब को आएँ
और अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद बयान फरमाएँ। बुलंद तर सलावा अपने अपने मरहुमीन की बुलंदी दरजात के लिए, बिलखुसूस मरहूम मगफूर हाजी नासिर साहब के लिए और बिलखुसूस ज़ाकिर अहले बैत नवीद आशिक बीए साहब के लिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहुमीन के लिए सूरह फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाहि मिनहुम वल अमवात ताबिअन लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन आदम बैनल माइ वत्तीन व अला अब्दिल मुअय्यदिर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। सलावत। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यारी अंत मिस्लु काबा। बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो वहाँ नबी पाक ने एक फ़रिश्ते को देखा कि जिसके बहुत ज़्यादा हाथ थे और जितने ज़्यादा हाथ थे उससे भी ज़्यादा उस फ़रिश्ते की उंगलियाँ थीं। तो नबी पाक ने उस फ़रिश्ते से पूछा कि ऐ फ़रिश्ते तुम्हारा क्या काम है? तो वो फ़रिश्ता कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरा काम है पानी के कतरात को गिनना कि कितने कतरे समंदर में गिरे हैं, कितने कतरे खुश्की में गिरे हैं, कितने कतरे तर ज़मीन में गिरे हैं, कितने कतरे खुश्की में गिरे हैं। मेरा काम है पानी के कतरात को गिनना। तो नबी पाक ने फिर इस फरिश्ते से पूछा कायनात में जो जो चीज़ें हैं आप उन तमाम चीज़ों को शुमार कर सकते हो? इसने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं मैं तमाम चीज़ों को शुमार कर सकता हूँ। फिर नबी पाक ने पूछा क्या इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप शुमार न कर सकें? उसने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, एक चीज़ ऐसी है कि जिसको मैं शुमार नहीं कर सकता। वो ये है कि जब आपके मानने वाले, आपके मुहिब आप पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, उस दुरूद पाक का जो अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाता है, उस अजर व सवाब को मैं शुमार नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पहला जुमला मैं कहूँगा, आपके चेहरे का नूर अनवर खिल उठेगा। खुश नसीब हैं ये लोग कि जिनका पहला भी काबे में आया और आखिरी भी काबे में आएगा।
पहला काबे के अंदर आया और आखिरी ने काबे के छत के ऊपर आना है। हमने किसी मंदिर में आने वाले को अपना पेशवा नहीं माना, हमने किसी मंदिर के आने वालों को अपना इमाम नहीं माना, बल्कि अल्लाह के घर आने वालों को अपना इमाम माना है, अल्लाह के घर आने वालों को अपना पेशवा माना है, अपना रहबर माना है। हमने किसी मंदिर से अपना इमाम नहीं लिया, हमने किसी मंदिर से अपना पेशवा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह के घर आने वाले को अपना इमाम माना है। वो अलग बात है कि दुनिया ने मेरे मौला के बुग़्ज़ में, मेरे मौला की हसद में लोगों ने अपनी मर्ज़ी के इमाम बना लिए, लोगों ने अपनी मर्ज़ी के इमाम बना लिए। धमकियों से मौला अली अलैहिस्सलाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, धमाकों से मौला अली अलैहिस्सलाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, रिवायतों से मौला अली अलैहिस्सलाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, किताबों से मौला अली अलैहिस्सलाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं कहूँगा अरे मौला अली अलैहिस्सलाम मिटने वाले नहीं हैं। अगर अली को मिटाना है तो फ़कत दो काम कर लो, एक मस्जिद गिरा दो, एक काबा गिरा दो। क्योंकि काबा जब तक रहेगा अली का आना याद आएगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का जाना याद आएगा। सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद मोहम्मद। अब नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि या अली अंत मिस्लु काबा, कि आपकी मिसाल काबा की सी है। अब सवाल करें या नबी अल्लाह आपने ये क्यों कहा कि या अली अंत मिस्लु काबा, कि आपकी मिसाल काबा सी है, आपकी मिसाल काबा की तरह है। तो नबी पाक अजब नहीं, नबी पाक इरशाद फरमाएंगे कि जिस तरह नमाजी नमाज पढ़ने वाला, 5 वक्ती नमाज पढ़ने वाला खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, अगर नमाजी नमाज पढ़ने वाला 1 सेकंड के लिए भी खाना काबा से मुंह मोड़ दे उसकी नमाज बातिल। इसी तरह अगर कोई मौला अली अलैहिस्सलाम के ईमान के, अगर कोई मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत से मुंह मोड़ ले तो उसका ईमान बातिल। सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद फरजहम। एक दो हदीसें वालिदैन की अज़मत पर। एक शख्स नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, कहता है कि या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट चूमूँगा और मैं हुरान जन्नत की पेशानी पर बोसा दूँगा। या रसूल अल्लाह अब वो मेरा काम हो गया है, क्या इस मन्नत को पूरा करने के लिए अब मुझे मरने का इंतज़ार करना पड़ेगा? नबी पाक ने फरमाया कि आसान सी बात है, मैं तेरी ये मन्नत इस दुनिया के अंदर ही पूरी करवा देता हूँ। उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह वो कैसे? नबी पाक ने कहा कि आसान सी बात है, अभी तू घर चला जा और घर जाके अपने वालिदा की पाँव के ऊपर बोसा दे, गोया तूने जन्नत की चौखट चूम ली है, और अपने वालिद की पेशानी पर बोसा दे, गोया तूने हुरान जन्नत की पेशानी पर बोसा दे दिया है। ये शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह अब मैं घर जाता, अपने वालिदा के पाँव के ऊपर बोसा देता, अपने वालिद की पेशानी चूमता। या रसूल अल्लाह अब मेरे वालिदैन इस दुनिया में रही नहीं है, अब मेरे वालिदैन इस दुनिया में है ही नहीं, वो वफ़ात पा गए, अब मैं क्या करूं? नबी पाक ने कहा कि आसान सी बात है, अभी तू कब्रिस्तान चला जा और कब्रिस्तान जाके अपने वालिदा की पाँव वाली साइड पर बोसा दे, गोया तूने जन्नत की चौखट चूम ली है, और अपने वालिद के सिरहाने जाकर बोसा दे, तूने हुरान जन्नत की पेशानी को चूम लिया है। ये शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह अब मैं कब्रिस्तान जाता और वालिदा की पाँव वाली साइड पर बोसा देता और वालिद के सिरहाने जाकर बोसा देता। या रसूल अल्लाह अब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी वालिदैन की कब्रें है कहाँ। नबी पाक ने कहा कि आसान सी बात है, अभी तू अपने हाथ से 2 कब्रें बना, एक कब्र को माँ की शबीह समझ और दूसरी कब्र को वालिद की शबीह समझ। वो जो तूने माँ की कब्र की शबीह बनाई है उसकी पाँव वाली साइड पर बोसा दे, गोया तूने जन्नत की चौखट चूम ली है, और जो तूने वालिद की कब्र बनाई है उसके सिरहाने जाकर बोसा दे, तूने हुरान जन्नत की पेशानी चूम ली है। सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद
मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी मदीना में गुजारी है। 2 साल इमाम अलैहिस्सलाम ने कूफा में गुजारे हैं। वो जो 2 साल इमाम अलैहिस्सलाम ने कूफा में गुजारे हैं, वहाँ इमाम अलैहिस्सलाम इस्लाम का दर्स देते थे, इस्लाम की बातें बताते थे। तो जब इमाम अलैहिस्सलाम इस्लाम की बातें बताते थे, इस्लाम का दर्स देते थे, तो वहाँ पीछे आके एक ईसाई आकर बैठ जाता था। वहाँ इमाम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल गुफ्तगू सुनता था। और गुफ्तगू सुनते सुनते एक दिन इस ईसाई के दिल में ऐसा हुआ कि उसके दिल में ईमान ले आया, अपने दिल में ईमान ले आया। उसने इमाम अलैहिस्सलाम की बातों का उसके ऊपर इतना असर हुआ कि वो एक दिन ईमान ले आया। जब वो ईमान ले आया तो उसने हज का इरादा किया। तो हज करके रोज़े रसूल की ज़ियारत करके वहाँ इसने इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इमाम अलैहिस्सलाम से चंद सवाल किए। उन सवालों में से एक सवाल ये था कि ऐ इमाम अलैहिस्सलाम, मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ मैं अकेला नहीं रहता, बल्कि हम 2 रहते हैं। एक मैं रहता हूँ और एक मेरी माँ रहती है। अब सवाल ये है कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ और मेरी माँ ईसाई है। अब सवाल यह है कि मेरी माँ ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं अपनी माँ को अपने से अलग कर दूँ या मैं खुद अलग हो जाऊँ? क्या मैं अपनी माँ से अपने बर्तन अलग कर दूँ या अपनी माँ को बर्तन अलग कर दूँ? या नाउज़ बिल्ला मैं घर से खुद निकल जाऊँ या अपनी माँ को घर से निकाल दूँ? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, खबरदार, पहले भी वो तेरी माँ थी, अब भी वो तेरी माँ है। मैं इमाम हो के हुक्म दे रहा हूँ, तू पहले से ज़्यादा माँ की खिदमत कर। ये वापस आ गया अपने घर, तो पहले से ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत करना शुरू हो गया। तो एक दिन माँ कहती है कि बेटा, जब से तू बेदीन हुआ है ना, जब से तूने हमारा मज़हब ईसाईयत छोड़ा है, जब से तू मुसलमान हुआ है, तू पहले से ज़्यादा मेरी खिदमत करना शुरू हो गया है, इसकी क्या वजह है? तो वो शख्स कहता है कि ऐ माँ, मुझे जिसने इस्लाम का कलमा पढ़ाया है वो मुझे दर्स देता है कि तू पहले से ज़्यादा माँ की खिदमत कर। ये फ़ौरन माँ कहती है कि बेटा, उसको पता नहीं होगा कि तेरी माँ ईसाई है, तू मुसलमान है। वो कहता है कि माँ, मैंने बताया है, मैंने इमाम अलैहिस्सलाम को बताया, फिर भी वो कहते हैं कि तू पहले से ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत कर। तो इस माँ का फ़ौरन दिल मुनक़लिब हुआ, ये फ़ौरन इस्लाम ले आई। सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद। एक और शख्स नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, कहता है कि या रसूल अल्लाह, लोग जाते हैं हज पे, उम्रे पे, खर्चा करते हैं, रुपए लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, नादार हूँ, मैं हज पे नहीं जा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? नबी पाक ने फरमाया, आसान सी बात है, अभी तू घर चला जा और घर जाके अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देख, खालिक के कायनात तुझे हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। फिर इस शख्स ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखूं तो क्या मुझे खालिक के कायनात 100 हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा? सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त
इस शख्स ने फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखूं तो क्या मुझे 100 खालिक के कायनात 100 हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा? नबी पाक ने फरमाया, जी हाँ ऐ शख्स, अगर तू एक दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देख तो खालिक के कायनात तुझे 100 हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक शख्स नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को शानों पर उठाकर पैदल हज करवाए हैं, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? नबी पाक ने कहा, तुझसे ये किसने कह दिया कि तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? या रसूल अल्लाह, मेरा बचपना था, मैं छोटा था, मैं खुद खाना नहीं खा सकता था, माँ मुझे लुक़मे बना कर खाना खिलाती थी। अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है तो मैं माँ को लुक़मे बना कर खिलाता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने ये कैसे कह दिया कि मैंने अभी माँ की एक रात का भी हक अदा नहीं किया? या रसूल अल्लाह, आपने ये कैसे कह दिया कि मैंने अपनी माँ का एक रात का हक अदा भी नहीं किया? या रसूल अल्लाह, मेरा बचपना था, मैं छोटा था, मैं चल नहीं सकता था, माँ ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। या रसूल अल्लाह, अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरी माँ बीमार है, खुद चल नहीं सकती, तो मैं माँ को शानों के ऊपर उठाता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने ये कैसे कह दिया कि मैंने अभी अपनी माँ की एक रात का भी हक अदा नहीं किया? या रसूल अल्लाह, मेरा बचपना था, मैं छोटा था, मैं एक बात अपनी माँ से बार बार पूछता था और माँ मुझे बताती थी। या रसूल अल्लाह, अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरी माँ बीमार है, अब माँ मुझसे एक बात बार बार पूछती है और मैं माँ को बताता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने ये कैसे कह दिया कि मैंने अभी माँ की एक रात का भी हक अदा नहीं किया? तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, सुनो ऐ शख्स, तुझ में और तेरी माँ में इतना फ़र्क ज़रूर है कि तू इतनी माँ की खिदमत करने के बावजूद तेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता होगा कि कब मौत का फरिश्ता आएगा और मेरी माँ की रूह को कब्ज़ करके ले जाएगा, कब मौत का फरिश्ता आएगा, मेरी माँ की रूह को कब्ज़ करके ले जाएगा। और तुझ में और तेरी माँ में इतना फ़र्क ज़रूर है कि तेरी माँ तेरी इतनी खिदमत करने के बावजूद भी तेरे जीने की दुआएं मांगती थी। सलवात पढ़े बवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चूँकि ज़ाकिर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, हम तफसीलन फ़ज़ाइल व मसाइब इन्हीं से सुनेंगे। बार मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मुज़म्मिल शाह साहब भाई हैं हमारे, मुर्शद भी हैं, उन्होंने कहा है कि चंद मसाइब के अशार मदीना वापसी के, तो मेरा भी दिल है कि आखिरी अयाम चल रहे हैं, जितना हो सके पुरसा दे दिया जाए। जब 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 किबला साहब आ गए, एक बार बुलंद तर सलावत। जब 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 सैदानियों का लुटा हुआ काफिला मदीना वापस पहुंचा है,
जनाब ज़ैनब ने जब बीबी सुगरा को देखा और जो गुफ्तगू आपस में की वो क्या थी, जनाब ज़ैनब ने जनाब सुगरा के सर पर हाथ रखा और क्या कहा, अच्छा हुआ सुगरा तू मेरे साथ नहीं थी, अच्छा हुआ सुगरा तू मेरे साथ नहीं थी। बीबी कहती हम में से किसी का तो पर्दा बच गया। अच्छा हुआ सुगरा तू मेरे साथ नहीं थी। बीबी ज़ैनब के सर पर एक चादर थी। जनाब सुगरा ने देखा, कहा ए पुप्पी अम्मा, आपके सर पर मैं चादर देख रही हूं, उसका रंग सुर्ख क्यों है? जनाब ज़ैनब ने क्या जवाब दिया, तू पूछती है सुर्ख है क्यों आपकी चादर, तुझको बताऊं मेरे शबीर की दुख्तर, अरे जब खैमे में शहलाए थे लाशे अली अकबर, मैं से गिरी लाश के पहलू में तड़प कर, अरे अकबर के लहू से रिदा सुर्ख हुई थी, अच्छा हुआ सुगरा तू मेरे साथ नहीं थी। और बीबी ज़ैनब ने जनाब सुगरा को देखा और कहा कि आप कैसे ज़ईफ़ा हो गई, आपने तो करबला भी नहीं देखी, आप कैसे ज़ईफ़ा हो गई? बीबी क्या 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 गुफ्तगू, किस तरह रही होगी तू इस घर में अकेली, एहसास मुझे है तेरे इस दर्द का बेटी, लेकिन तू ज़ईफ़ा हुई फुरकत में बदल गई, तुझको तो खबर सिर्फ शहादत की है पहुंची, मैं शह का गला कटते हुए देख रही थी, अच्छा हुआ सुगरा तू मेरे साथ नहीं थी। अब बिला तखरीर मैं दावा देना चाहूँगा इंतहाई वाजिब एहतराम जनाब मौलाना